स्टार्ट करते हैं. So, Assalamualaikum everyone, this is Mariam Jamshid, CEO of ASOL AI Solutions, and I'm pleased to introduce a really talented and adept data scientist and a data analyst working in IBM and a former data analyst at Microsoft, and that is Mr. Muzammil Shah. Please welcome Mr. Muzammil Shah, जिन्होंने हमें ASOL को ज्वाइन किया और हमारे साथ ही गेस्ट स्पीकर के तौर पे आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है. इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा और आप प्लीज़ इनको वेलकम करें. और तो हम थोड़ा सा मुजम्मिल से बात कर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं. जी मुजम्मिल, आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Am I audible? Yes, you are, Muzammil. Hello, am I audible? Yes, Mr. Muzammil, you're audible. Okay, assalamu alaikum everyone. I'm Muzammil Shah, and I have started my career at IBM as a cognitive consultant, junior cognitive consultant, and after that I started working at data science. उसके बाद I have been switching roles sometimes in quality assurance and other things as well. But मेरा एक पर्सनल जो इंटरेस्ट रहा है वो शुरू से वो AI की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहा है, और जो है इसी हवाले से I decided to make a small presentation on AI, और मैं आपको बता सकूं कि what it is about and how we can move forward in this field. So I joined IBM in 2017, mid of 2017. Until since then I've been working in the same company. Though my role has been changing from cognitive junior consultant to data scientist to other fields. So आज मैं आपको थोड़ा सा डेटा साइंस के हवाले से इंट्रोडक्शन दूंगा. फिर जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट क्रिएटिंग कॉग्निटिव बिल्डिंग कॉग्निटिव नेटवर्क. सो बाय नेटवर्क मैं आप एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट डज इट मीन. और कॉग्निटिव की टर्म काफ़ी लोगों को नहीं पता, AI की टर्म्स पता है, कॉग्निटिव की नहीं पता. तो आई विल बी स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन हियर. मरीम, कैन यू हेल्प मी आउट कि प्रेजेंटेशन यहाँ पे जो है मैं कैसे प्रेजेंट स्टार्ट करूँ. Okay. Yes, Muzammil, can you hear me? Yeah. Yeah, I'm saying that please scroll down your mouse to the right bottom right और वहाँ पे आपको मिल जाएगा. Got it. So आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन को. मुजम्मिल, आप वो टैब जो आपको प्रेजेंट करना है तो उस टैब को प्रेजेंट करें प्लीज. ओके. इंटायर स्क्रीन ना करें. Yes, it's visible now. Wait. आप प्रेजेंट नाउ के ऊपर क्लिक करें और जो सिंगल टैब या वो आप करें. ठीक है. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Thank you. Yes, Okay. visible. So let's start the presentation. Today's agenda would be, understanding what the term cognitive means. Then we can discuss about some AI technologies. Then we will be jumping between the difference between data science and AI. What is the key difference? And then we further explore the data science. After that, we will discuss some industrial applications that we are currently, data science or AI is involved in that. After, we will discuss about cognitive innovation, like how cognitive abilities or cognitive, technologies can innovate the current situation, modern technology. Uske baad, we will discuss about skills required to do that, and then we will talk about the building a network and creating more opportunities. So let's start here. So cognitive के बारे में काफ़ी लोगों को जो है ना वो नहीं पता कि what is cognitive. A lot of people consider it as a human cognitive. तो बिल्कुल वैसा ही है ये, but
कॉग्निटिव सिंपली रिलेट्स टू ह्यूमन रीजनिंग और थिंकिंग। तो जो भी हम सोचते हैं, रीज़न करते हैं, दैट इज़ द कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन पर्सन, जिसमें काफ़ी सारी सेंसेस होती हैं, हेयरिंग, टच, स्मेल, व्हाटएवर द सेंसेस आर। सिमिलरली ये हम रेफर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। विद इन IBM द कॉग्निटिव रेफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें सेम जो है प्रोसीजर फॉलो होता है ह्यूमन ऑगमेंटेशन का, यानी ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हम ऑगमेंट करके दिखाते हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ को, so that we can utilize those, we can utilize that power to understand different things like data, or to develop deep computational capabilities using that computer power. तो ये cognitive के meaning है, जिसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोग जो है फेमिलियर होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि सिंस द ऑडियंस, मरीम टोल्ड मी अबाउट द ऑडियंस इज रिलेटेड टू AI टेक्नोलॉजी और उसकी फील्ड से रिलेटेड है, तो यू मस्ट नो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो वी हैव जस्ट नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज कॉग्निटिव। आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जो कि फेमस AI टेक्नोलॉजीज हैं, यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर और नो अबाउट, जिसके अंदर जो है स्पीच रिकग्निशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन। सो ये काफ़ी फेमस हैं, ये आप रोज़ाना जो है अपने यूजेज में, डेली यूजेज में देख सकते हैं। स्पीच रिकग्निशन where you can, the computer can recognize your voice, and even it can translate your language to textual form or code form. Even natural language processing is also the same thing, but it's a subset of speech recognition. इसमें क्या होता है कि ह्यूमन और मशीन का इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और उसको जो है सॉरी sorry, I just wanted to say that your screen is like stuck on one screen, one slide. It's not moving. It's not moving? Yeah, it's just stuck to like building cognitive networks, and I think you are, that's better. Thanks. मेरे ख्याल से इसको प्रेजेंट करने पे सही नज़र नहीं आ रहा। Is it still moving or stuck? No, It's stuck. it's moving. It says AI technology. Okay. We can see Okay. the AI technology slide. So I can do without the full screen slide view. Yeah, actually that time your slide was not seeable. Okay. इस तरह से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। So should I repeat that? Yes, I sir. think you're good to go. Okay, I can repeat that. So as I discussed, these are the few examples of AI technology. इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन के अलावा आपके पास व्हेन यू यूज़ द गूगल ब्राउज़र और एनी अदर ब्राउज़र, तो इट हैज़ अ स्मार्ट, इट हैज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिडिक्ट द राइट आंसर, टू प्रिडिक्ट द राइट सर्च। तो सर्च इंजन के लिए भी जो है एक AI टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो वो आपको जो है आपको ऑप्टिमल रिजल्ट लेकर आता है। इवन यूट्यूब के ऊपर रिकमेंडेशन इंजन्स बने हुए हैं, तो दीज आर ऑल AI टेक्नोलॉजीज़। तो ये सब AI टेक्नोलॉजीज़ हैं, यहाँ मैंने 3 मेंशन किए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ AI टेक्नोलॉजीज़। आगे इसको डिस्कस करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आखिर में ले लेंगे, और अगर देयर इज सम अर्जेंट क्वेश्चन तो यू कैन कमेंट आउट एंड मरियम कैन पुट इट फॉरवर्ड। सो after that, a lot of people confuse data science with AI, like both are the similar things. So ये misconception थोड़ा सा ख़त्म होना चाहिए। Artificial intelligence is the capability or ability of a computer to perform autonomous task, जो कि human capabilities कर सकती हैं, उसको बेहतर तरीके से perform कर सकता है, उसको replicate कर सकता है। तो ये enhancement है human abilities की। मगर डेटा साइंस इज़ नॉट जस्ट द इन्हेंसमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। डेटा साइंस इज़ अ फील्ड दैट मेक यूज़ ऑफ AI। डेटा साइंस क्या काम करता है? डेटा साइंस AI की जो फील्ड है उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, वो टेक्निक को यूज़ करता है, और उसके बाद जो है डिफरेंट हिडन पैटर्न्स मालूम करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना डेटा की, या प्रिडिक्शन करना, एनालिसिस करना, या विजुअलाइजेशंस दिखाना, तो ये सारे काम जो है वो डेटा साइंस में परफॉर्म होते हैं रिलेटेड टू द डेटा फील्ड। सो अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा साइंस इज़ अ जॉब, इज़ अ फील्ड ऑफ वर्क, जो कि
एनालिसिस डेटा करता है, डेटा पे एनालिसिस कर रहा होता है, मगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इज़ अ टूल और इज़ अ मैकेनिज्म जो कि बेटर प्रोडक्ट बनाने में या आपकी जो कि डिफरेंट डे टू डे टास्क है, इवन इट इज़ रिपोर्टिक्स, मैकेनिकल और एनी टाइप ऑफ वर्क, उसके अंदर आपको जो है एक एज प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें, आप उसको जो है प्रोडक्टिव बना सकें अपनी टेक्नोलॉजी को, जो आपकी फील्ड है, आपकी जॉब है उसको। तो एक्सप्लोरिंग फर्दर डेटा साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो बेसिक इसके 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं डेटा साइंस के, एंड you all must be familiar of, and there are a lot of same Venn diagram posted all over the Google and everywhere, so इसको थोड़ा सा explain कर देते हैं। Number 1 is domain expertise. Like if you are working for a bank, then you should have a domain expertise for related to a bank, वहाँ की आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो है नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, तो यू शुड नो अबाउट व्हाट एंड हाउ एन ई-कॉमर्स वर्क। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन, तो वहाँ पे आपको उसके जो है अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल द कॉन्सेप्ट यू शुड नो अवेयर अबाउट इट। सिमिलरली इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि इसमें AI यूज़ होती है, तो यहाँ पे AI क्या यूज़ होती है, यहाँ पे वी यूज़ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और अदर टेक्नोलॉजी जो कि हम AI की यूज़ कर रहे होते हैं। डोमेन एक्सपर्टीज़ के साथ AI मिक्स होती है। देन what AI does, it uses some statistical techniques और mathematical techniques और algorithms। वो algorithms आप normally भी परफॉर्म कर सकते हैं आप विदाउट AI। वो मीन्स कि अगर आप if I give you a list of data, 100 people, 100 patient from a hospital, and then ask you to identify कि इनको क्या क्या disease और क्या क्या symptoms थे, then you can do that like in a day or maybe 2 day, आराम से कर लेंगे। But if I give you a million records of data or more than that, and then I ask you to find hidden data, hidden pattern that we haven't discussed or we haven't talked about, तो फिर आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो for that you need a machine that can do iteration multiple times, that can have different algorithms to measure, to weight different values of data। उसके बाद वो फिर कोई एक इंसाइट आपको प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पे आप कोई ना कोई फैसला लेते हैं। इधर यू एनालाइज द पास्ट और यू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन दोज एनालिसिस। सो बेसिकली डेटा साइंस जो है वो uses a component of AI. Moving forward, there are some industrial application. Artificial intelligence and data science are being applied to a wide range of areas. So in all sectors, almost all sectors, we have incorporated data science and AI and other things. For example, banking sector, financial sector is full with data science and AI. Marketing platforms, e-commerce ले लें आप या कोई और ले लें, they have recommendation systems as well. You go and buy a watch, and after that you are getting a notification on Facebook or advertisement on Facebook that okay, you have been watching the Swiss watch, and these are other offering we have. Agriculture we have. Agriculture में पाकिस्तान में तो उतना नहीं है, but outside Pakistan they are more focused on agriculture, and they put a lot of efforts of AI टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मिंग के लिए, इवन जो है प्लांट टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा गेमिंग है। गेमिंग में तो काफ़ी शुरू से ही जो है वो AI की इन्वॉल्वमेंट रही है। वी ऑल नो लाइक वाटर बॉट्स और व्हेन वी प्ले विद द कंप्यूटर, देन ऑटोनोमस व्हीकल जस्ट लाइक टेस्ला इज क्रिएटिंग एंड अदर कंपनीज जो कि ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ अर्से पहले ये हुआ था कि नासा ने ब्लैक होल की जो कि पिक्चर बनाई गई थी, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये पिक्चर जो है या कैमरे ने खींची है, तो दैट वाज नॉट द कैमरा, दैट वाज द इमेज क्लासिफिकेशन या एक डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए थे टेलीस्कोप के पास, उनको कंबाइन करके एक इमेज क्रिएट की गई थी। क्योंकि ब्लैक होल की इमेज तो ले ही नहीं सकते, इट एब्जॉर्ब्स द लाइट, सो देयर आर सम वेव्स दैट हैज़ बीन कैप्चर्ड, और उसको जो है उन्होंने AI के थ्रू जो है उसकी एक इमेज कंस्ट्रक्ट की कि दैट इज़ द ब्लैक होल। तो जो उसके इर्द गिर्द रोशनी थी, तो उसको उन्होंने जो है इंटरप्रेट करके एक इमेज क्रिएट कर दी। इस तरह हेल्थ केयर के अंदर काफ़ी अर्से से हो रहा है। IBM इज़ ऑल्सो वर्किंग मेजरली ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें जो है डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन और प्रिडिक्शन वगैरह के काम होते हैं। आफ्टर दैट
चैटबॉट जो कि अभी लास्ट 2 years में रिसेंटली काफ़ी हाइप इसकी हुई और लोग इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो कि 24/7 सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते कस्टमर केयर की, तो दे आर यूजिंग चैटबॉट्स, एंड चैटबॉट्स हैज़ हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन इन सॉर्टिंग थिंग्स आउट। अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं दैट not always the representative can help, तो खुद से भी chatbot can help and guide. इसके बाद फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस के अंदर इंश्योरेंस हो सकती है, फाइनेंस में there are a lot of money exchanges and other things, stock exchanges, यहाँ पे जो है predictions बहुत important होती हैं, क्योंकि अगर आप predictions के बगैर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो you will be on a loss। तो यहाँ पे फाइनेंस के लिए there are a lot of applications currently जो चल रही हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, सो आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी जो है वो एक थोड़ी सी न्यू फील्ड आई है जिसके अंदर जो है AI is creating things, AI is creating some arts, some creating some poetry और maybe creating some songs, writing a symphony। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कैपेबल है रीजनिंग करने में और अपने आप को इवॉल्व करने में, तो वो क्रिएशन की तरफ भी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा भी एक्यूरेट नहीं है बट इज़ वर्किंग फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टू द इनोवेशन पार्ट, तो अगर हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं एंड हम इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में फेमिलियर है, तो हाउ वी कैन ब्रिंग सम इनोवेशन इन दैट। तो इनोवेशन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट यू हैव टू इंश्योर लाइक जो आप इनोवेशन लेकर आ रहे हैं वो कुछ इम्पोर्टेंस रखती हो, इट हैज़ सम इम्प्रूवमेंट, प्रीवियसली जो वर्क होता जा रहा है उससे वो इम्प्रूव्ड हो, इट हैज़ टू बी एन अपग्रेड ऑफ द प्रीवियस टास्क। टेक्नोलॉजी जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वी ऑल लाइक टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग वेरी फास्ट। पास्ट ईयर्स में आपके पास जो है वो इतनी ज़्यादा जो है टूल्स नहीं थे अवेलेबल, इवन लैंग्वेजेस भी जो है इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, देयर वर फ्यू थिंग्स, द इंटरनेट स्पीड वाज नॉट एज मच एज गुड एज नाउ, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास। अब जो है वी आर इंट्रोड्यूसिंग, वी आर इवॉल्विंग टूवर्ड्स क्वांटम कंप्यूटिंग, दैट इज़ नेक्स्ट बिग स्टेप। अभी तो वो बिल्कुल जो है इनिशियल फेज़ में है, बट इट हैज़ अ फ्यूचर, इट हैज़ अ ग्रोथ। तो इसी तरीके से आप इनोवेशन कैसे लेकर आ सकते हैं टेक्नोलॉजी में, हम उस पर बात करेंगे। तो मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है जो कि मैंने कहा सोचा मैं आपसे प्रेजेंट कर दूँ। दिस आइडिया इज़ ओपन फॉर एनीवन बिकॉज आई गॉट टू नो that आपके फ्रॉम अमंग द ऑडियंस देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ क्लियर की हैं, उसके बाद वो डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं AI से रिलेटेड, जो AIACI का दैट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जो है, तो वहाँ से सपोर्ट हो रहा है उनको, जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं। तो मेरा मकसद भी यही था कि वो तमाम डिफरेंट जो कि एरियाज़ के लोग हैं उनको मैं एक जगह पे जो है कंबाइन करने की कोशिश करूँ, कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेकर आऊँ जो कि उनका आपस में उनको बॉन्ड बनाए। अभी इसको देखते हैं कि अगर मैं एक आइडिया की बात करूँ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रही हो, डेटा साइंस भी यूज़ हो रही हो और क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज़ हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही हो, कैन गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो Mr. Muzammil, can you kindly repeat your question? which question you are talking about? I just joined right now, so I thought that was a question that you asked. No, I was not asking a question. I was presenting you an idea. एक आइडिया जो कि मुझे लगता है कि different group usual having different various materials that can combine together and make a big product, या कोई एक ऐसी चीज़ पे काम कर सकते हैं collectively। तो इसी हवाले से मैंने ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाई। उसका टॉपिक भी यही है कि बिल्डिंग अ कॉग्निटिव नेटवर्क। मैं इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कॉग्निटिव इनोवेशन आइडिया जो है वो ये है कि वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज ऑल टुगेदर।
अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंसिडर करें, लेट्स से आई हैव यूज्ड अ बैंक हियर एज एन एग्जांपल, तो which perform its daily transactional task without intervention of any cognitive approach. अभी वो कुछ भी यूज नहीं कर रहा ना, it is not using any type of AI intervention technology. वो बिल्कुल normally they are using simple Excel and recording the data manually databases के अंदर. तो हम उनको AI टेक्नोलॉजी कैसे दे सकते हैं? How we can improve? पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में देखा जाए तो there are a lot of banks जो कि अभी इतना इवॉल्व नहीं हुए, दे आर स्टिल अहेड ऑफ टाइम, नहीं है वो, पीछे हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो जो है उनको इम्प्रूवमेंट हम दे सकते हैं. वी कैन सेल दिस इनोवेशन आइडिया टू देम, build a team and start building on this type of project. तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ. तो what we can propose to them to use cloud for storing data. lot of companies they don't use, definitely जो कि transactional data है या फिर ऐसा data है जो कि बहुत critical होता है, they won't rely on cloud because cloud के कुछ security जो है concerns होते हैं कि ना हो जाए. तो there are a lot of different data जो कि हम store भी कर सकते हैं, जैसे analytical data, कुछ analytical data हम store कर सकते हैं जिसकी हमें जो है ज़्यादा security concerns ना हो. इसी तरीके से यहाँ पे हम उनको ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो ब्लॉकचेन इज द बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन. यहाँ पे ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकचेन का मतलब है हाइपर लेजर. हाइपर लेजर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज हाइपर लेजर? हाइपर लेजर इज अ इनॉर्मस और अ वेरी बिग लेजर जिसपे आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, जस्ट लाइक अ क्रिप्टो करेंसी. वहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम व्हाटएवर द क्रिप्टो करेंसी इज, तो उसकी एक वैल्यू, एक हैश कोड उसका जो है स्टोर हो रहा होता है. तो दैट इज दैट इज द ओनली वन डिस्टिंक्टिव फीचर जो सबसे उसका जो है मुनफरिद होता है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई बाय दैट कोड. इसी तरीके से व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन तो वो भी डिस्टिंक्टिव हो. दैट विल व्हाट विल हैपन कि ट्रांजैक्शन में जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी, और एक जो है आपके पास कंबाइन लोगों के कंबाइन जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे. इवन वन बैंक कैन इंटरेक्ट विद अदर बैंक यूजिंग दीज लेजर्स. अ कंपनी कैन नो लाइक व्हाट सैलरीज आर बीइंग सेंट टू द एम्प्लॉइज, और उस सैलरीज में से वो कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है, कितनी कंजम्पशंस हैं. तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन. सो कंपनीज को भी पता हो, बैंक को भी पता हो कि उनके कस्टमर कहाँ जा रहे हैं. तो it can also identify the previous activities as well, future activities as well. और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे थेफ्ट हैं, जैसे कि क्राइम्स होते हैं हमारे पास. मैं जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे जो कि मैं डायग्राम में जो इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ. तो देयर इज़ अ कस्टमर हु यूजेस हु डज द शॉपिंग, और वो शॉपिंग करता है. लेट्स कंसीडर लाइक वो इम्तियाज़ स्टोर जाता है. we all know the Imtiaz store. So there he goes and वहाँ से वो अपने कार्ड पे चेकआउट करता है, ख़रीदारी करता है. तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि उसने ट्रांजेक्शन की है वो उसके वेंडर से जाती है बैंक में. बैंक उसको जो है वैल्यूएट करता है, कंफर्म करता है कि उसके अकाउंट में वो बैलेंस है या नहीं है. देन वहाँ से वो वेंडर को वो पैसे भेजता है, उसके बैंक को भेजता है पैसे. यहाँ पे मैंने उस वेंडर का बैंक नहीं बताया, बट ये कि वेंडर इज दिस मशीन, ATM मशीन, कार्ड मशीन. तो इसके अलावा जब वो ये काम कर लेता है तो इट शुड स्टोर द वैल्यूज, और इट शुड स्टोर द डेटा इन ब्लॉकचेन, सो दैट वहाँ पे उसके पास जो है एग्जैक्ट पता हो कि उसकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है. मतलब वो किसी और कंपनी का कार्ड यूज़ करता है और ये बैंक वेंडर का है, तो यहाँ पे जो उसके पास अपडेट होगी, जो इस यूज़र का कार्ड है, ही शुड नो कि उस यूज़र ने कितनी ट्रांजैक्शन की, किस बैंक से की, कितने बजे की, क्या चीज़ खरीदी है, वॉट एवर इज़ द थिंग. तो वो इस ब्लॉकचेन में सेव हो जाएगी. तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उसको ऊपर कोई किसी तरह का फेकनेस या किसी तरह की जो है ना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती. सिमिलरली उसमें से जो कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है दैट यू कैन स्टोर्ड ऑन क्लाउड, like what this vendor usually sells, yeah, what this customer usually buys,
और कितना परचेज करता है, कौन से मंथ में कितना परचेज करता है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. लाइक ही डज द शॉपिंग इन दिसंबर बिकॉज ऑफ द क्रिसमस इफ ही इज लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री, या फिर वो पाकिस्तान में रहता है तो वो ईद की शॉपिंग कब करता है, रमज़ानों में ज़्यादा शॉपिंग होती है, या कौन सी क्या चीज़ खरीदी जा सकती है. तो दीज आर ऑल द डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग यूजिंग द AI टेक्नोलॉजी. इसी तरीके से कस्टमर को जो है चैटबॉट बहुत आसानी से हेल्प कर सकता है. इफ़ ही इज़ ई-कॉमर्स कस्टमर तो वहाँ पे चैटबॉट जो है वो बहुत ईजिली हेल्प कर सकते हैं फाइंडिंग अ प्रोडक्ट. इवन जो है आपको इस चीज़ में बहुत आसानी कर सकते हैं कि मेरे कि कौन सी प्रोडक्ट की क्या वैराइटीज़ हैं, कॉस्ट कितनी है. इवन कस्टमर कैन टॉक एंड डिलीवरी टाइम वगैरह एक्सेट्रा कैन भी, ये सब चीज़ें पता हो सकती हैं. देन गोज द क्लाउड पार्ट. तो क्लाउड के ऊपर जब डेटा स्टोर होता रहेगा तो वहाँ से व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ दैट डेटा जो आपने स्पेसिफिकली फॉर डेटा साइंस कलेक्ट किया है, वहाँ से आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी. तो वो एनालिसिस के बेस पे आप फर्दर प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं. यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दिस यूज़र इज़ गोइंग टू चर्न ऑफ और नॉट. इसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि ही वाज ऑन अ क्रेडिट कार्ड और इसने अपनी लिमिट बिल्कुल जो है ना पीक पे इसने अचीव कर ली है और नाउ ही इज़ गोइंग, डज ही नीड अ लोन, या ये इसको जो है बंदी करवा दे कार्ड को, या ये जो है कोई क्राइम कर जाए, पैसे नहीं दे और एनीथिंग कुड हैपन. तो ये आप उस एनालिसिस से या वो डेटा साइंस की जो इंसाइट्स होंगी आप उससे डिफरेंट जो है सेगमेंट्स बना के आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द कस्टमर इज लाइंग एट दैट मोमेंट. तो यहाँ से आप एक पूरा कंप्लीट एक एप्लीकेशन पैकेज बना सकते हैं. चाहो तो आप इसको जो है किसी बैंक को भेज सकते हो. यहाँ पे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जगह आप कुछ और भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप एयरलाइन इंडस्ट्री कर सकते हो कि एयरलाइन इंडस्ट्री के अलावा आप यहाँ से कोई सिनेमा कर सकते हो, फिर मूवी थिएटर कर सकते हैं. आप यहाँ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कर सकते हैं आप, क्योंकि उस पर आप दैट HEC के मार्क्स वगैरह जनरेट होते हैं और बहुत सारे पेपर्स के होते हैं तो वो बाद में चेंज हो जाते हैं. ऐसा होता है. वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटीज़ में या बाकी जगहों पे मार्क्स वगैरह चेंज होते हैं. तो वो चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ पे यूज़र की स्टूडेंट्स की एनालिटिक्स कैसे परफॉर्म की जा सकती है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में, लेट्स सपोज वी हैव कनेक्टेड लाइक 15 और 20 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान और फिर हम उनकी स्टैट्स देख रहे हैं, हम उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं, उनका यूज़र इनपुट यानी कि वहाँ पे उनका जो कि स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं और वह हम उसके ऊपर एक एनालिसिस करें कि विच यूनिवर्सिटी हैज़ टू बी रीवैल्यूएटेड on the terms of their productivity or the terms of their education system. तो ये जैसे एक एग्जांपल थी. दूसरा आइडिया मैंने जो है ऐसे ही बता दिया आपको. देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज़ जो कि आप कर सकते हो मूविंग फॉरवर्ड. हाँ, अब बात कर लेते हैं हम स्किल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. हमें आइडियाज़ मिल गए कि इनोवेशन के लिए हम AI इनोवेशन के या डेटा साइंस इनोवेशन के लिए हम ब्लॉकचेन पे काम कर सकते हैं, डेटा साइंस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे और डिफरेंट और सेक्टर्स पे. इवन आपको बिजनेस नॉलेज भी होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें टू बी इन दिस फील्ड ऑफ वर्क यू नीड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्टीज. टेक्निकल एक्सपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट टू. लाइक मैंने जो बात की कि ब्लॉकचेन आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, डिफरेंट टूल्स के बारे में पता हो, क्लाउड सर्वर के बारे में, डॉकर्स हैं, एक्सेट्रा लॉट ऑफ थिंग. तो साथ साथ आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. इफ़ यू डोंट नो कि हाउ कंपनी वुड प्रोपगेट, उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं कंपनीज़ की और उन प्रोडक्ट्स को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, किन प्रोडक्ट्स पे कितना जो है मार्जिन है आपको सक्सेस करने का. इन दी एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसर्न अबाउट द कंपनीज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. तो इफ़ अ कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर यू टू बिल्ड सम प्रोडक्ट लाइक दिस, तो वो कहेंगे कि मुझे इससे फ़ायदा क्या होने वाला है. इफ़ आई वांट टू इनकॉर्पोरेट चैटबॉट, तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा. तो यू कैन सी कि आपको जो है वो कॉल सेंटर की जो है वो जो एक्सपेंसेस हैं वो बचेंगे. यू कैन लिमिटाइज द कॉल सेंटर टाइमिंग्स. 24/7 करने की ज़रूरत नहीं है, वर्क आवर्स में करें और वहाँ पे आपको जो पैसा बचे यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस टेक्नोलॉजी जो रात के टाइम या ऑफिस आवर्स के आउटसाइड वो कर सके. फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचेंगे तो यू कैन सेव दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड दिस एंड दैट. तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, उससे आप इस स्किल्स को यूज़ ही नहीं कर सकते. तो ये दोनों आपस में मिलकर चलते हैं.
खैर मैं बाकी आई कैन मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं एक्सपर्टीज. दीज आर नॉट ऑल द एक्सपर्टीज बट गेट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव. सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए. इट कैन बी आइदर पाइथन, आर, जावा, रूबी, एनीथिंग, स्केला, व्हाटएवर. जो भी आपको लैंग्वेज आती है, एसक्यूएल, जो भी आप अच्छे हैं आप उसको सीखें. इट्स बेटर टू लर्न मोर लैंग्वेजेस, मोर देन 2 or 3 लैंग्वेजेस. then language mostly use करते हैं. I have used Python and R in the most cases, but I know JavaScript as well. Front-end technologies के भी idea है मुझे JavaScript, because when you jump on the cloud side, जब आप जो है cloud की तरफ कोई deploy करोगे application या वहाँ पे manage करेंगे, then you should know JavaScript as well. So for me the major languages are Python, R and JavaScript. And SQL is as important as अगर आप big data की तरफ जाते हैं, then you should know SQL. So programming languages, then Okay. machine and deep learning technique. And the 46 questions answer. Sorry, you're not audible. Can you hear me? I'm not audible to you. Yeah. Can you speak I'm again? audible now. I'm saying that some people are waiting for the question answer session, तो हम थोड़ी देर के अंदर like आप जब आपकी slides complete हो जाएं तो आपके पास इतना time है कि एक question answer का session रख सके थोड़ा सा. Yeah, sure. I have included that slide as well. हम रख लेंगे इंशाल्लाह. तो Okay, that's great. Thank you. yeah, so should I move forward? Yes, please. I'm so sorry to interrupt. Okay. So next is creativity and visualization. Creativity is very important. If you are not creative enough, तो आप अपनी कितनी भी अच्छी आप जो है ऑब्जर्वेशन कर लें, कितना अच्छा एनालिसिस कर लें, you cannot explain it to the user. So creativity is very important in this skill. आप if you know Tableau, तो आप उसको भी जो है यूज़ कर सकते हो, D3 or whatever. If you have other creativity skills like presentation skills is also important. उसके अलावा domain expertise, it is the this is the baseline. तो domain expertise अगर आपके पास होंगी नहीं तो फिर आप उस पर ना डेटा साइंस कर सकते हैं ना AI वगैरह पे इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं. तो domain expertise आपके पास होनी चाहिए. After the diverse and adaptable knowledge, तो यहाँ पे डाइवर्स या अडेप्टेबल नॉलेज से क्या मतलब है? इसका मतलब यू शुड हैव वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज का डिफरेंट जो है चीज़ों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज आप अभी करंटली आपकी मेजर टास्क में या मेजर आपकी स्किल सेट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है. और अडेप्टेबल मीन्स कि आप यू कैन वर्क ऑन एनीथिंग. आपके पास अगर अगर आपको पाइथन आती है तो देयर इज़ अ फ्रेमवर्क Django and other framework, तो आप किसी पे भी आराम से कर सकते हैं. इवन यू नो जावा तो आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे या डिफरेंट एरियाज पे काम कर सकते हो. जावास्क्रिप्ट के लिए भी यू नो के इफ़ यू वर्क ऑन जावास्क्रिप्ट तो वहाँ पे भी बड़ी सारी जो है लैंग्वेजेस आ गई हैं. पहले ECMA 5 थी, फिर ECMA 6 उसका फ्रेमवर्क अपडेट हुआ. देन वी नो के TypeScript आ गई है. तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट AngularJS एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट बेसलाइन तो उनकी सेम ही है ना. तो यू शुड नो हैव अडॉप्टेबल नॉलेज. अगर आपको Tableau आता है तो यू शुड अगर आपको डेटा साइंस आती है अच्छी खासी, बट यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ Tableau एज वेल, ताकि आप कभी अगर खुद से कुछ चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहे हो ना तो आप उसके थ्रू कर दें, Tableau के थ्रू कर दें. तो ये अडॉप्टेबल नॉलेज है. देन क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लूपहोल्स नहीं देखते किसी भी क्लाइंट के बिजनेस में या कोई भी अपने प्रोडक्ट में, तो आप इनोवेशन लेके ही नहीं आ सकते. तो क्रिटिकल रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द राइट to find out the right solution. You first have to know the exact problem. अगर आपको प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो आप उसका सोल्यूशन भी लेके नहीं आ सकते. तो क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ता है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट डजंट मीन कि आप बचपन से अगर जीनियस हैं तो आप क्रिटिकल रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है. इट एड्स अ वैल्यू टू दैट बट नॉट कम्प्लीटली. इफ़ यू हैव द अदर स्किल्स एंड नॉलेज आपके पास और रीजनिंग करने का तरीका है, देन you can be a good thinker. Then second last, maths and statistics. Yeah, we all hate that. Maths बहुत कम लोगों को पसंद होती है, except for the few genius around us, जिनको maths बहुत पसंद होती है. I'm not one of them जिसको maths या stats अच्छी लगे. stats फिर भी सही लगती है, but maths तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती. But this is also a base
पिलर इन AI और डेटा साइंस। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसको हमें सीखना पड़ता है, मजबूरी है अगर नहीं आती, बट इसको अगर आप इंटरेस्ट बना के करेंगे तो इसको आसानी से सीख जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मैथ्स एंड स्टैट्स एंड देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर दैट, जिसको आप सीखते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हो गए या और डिफरेंट टेक्निक्स हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो इसके ऊपर माई पर्सनल फेवरेट इज़ द क्यूरियोसिटी। इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट लर्निंग एनीथिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है उसके लर्निंग में तो आप कुछ भी सीख जाएंगे। जैसे लाइक मुझे लास्ट ईयर इंटरेस्ट हुआ क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर, और मुझे नहीं पता था कि ये क्या होती है। मतलब आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स अ लॉट। तो मुझे फिज़िक्स बचपन से ही पसंद है, मैं कभी कर नहीं सका उस पर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो IBM ओन करती है, तो मैंने कहा व्हाई शुड नॉट ट्राई। तो मैंने उसको ट्राई किया। I did a few courses on that, जो कि all available हैं, easily available, because there are some restriction and limitation for doing that courses. You have to be a master's or PhD or whatsoever. So जहाँ से भी नॉलेज मिलती जा रही थी, जो मैं कर सकता था, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया। मैंने उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या जो है इनोवेशंस आ सकती हैं, इसको किस तरह से डेटा साइंस या AI से भी कनेक्ट किया जा सकता है इन द फ्यूचर। नॉट राइट नाउ, बट इन द फ्यूचर इट कैन बी कनेक्टेड। अभी भी कुछ चीज़ों में कनेक्ट किया जा सकता है, बट नॉट सो मच इफेक्टिवली। तो ये क्यूरियोसिटी साइंस की थी, और मैं इसको अभी भी पढ़ रहा हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है वीकेंड्स पे, जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो इवन वंस अ मंथ आई ट्राई टू स्टडी दैट। सो स्लो प्रोग्रेस है, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई फील्ड ऑफ वर्क। फील्ड ऑफ वर्क मेरा डिफरेंट है, इंटरेस्ट ऑफ वर्क मेरा डिफरेंट है, बट what I want is to first I have the skill set for this quantum computing stuff, तो फिर मैं इसको अपना फील्ड ऑफ वर्क भी बनाऊँ। बट राइट नाउ बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग एल्स, मैं इसको इम्पोज नहीं कर सकता अपने ऊपर। और अगर मैं इसको अपने ऊपर इम्पोज कर लूँगा पूरी तरीके से, उसी के ऊपर मैं फोकस रखूँगा, तो जो मैं काम दूसरा करता हूँ उस पर मैं फोकस मेरा नहीं हो पाएगा। तो दिस इज क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द स्किल्स जो हमें अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, नॉट ऑल बट एटलीस्ट अ फ्यू स्किल्स फ्रॉम दिस लिस्ट। ये इसके अलावा भी करने तो बहुत अच्छा है। आफ्टर दैट बिल्डिंग अ नेटवर्क, जो स्लाइड का पूरा मकसद है, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ नेटवर्क। सो बीइंग एन एक्सपर्ट इन अ डोमेन इज इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको कोई चीज़ अच्छी आती है, यू आर अ गुड प्रेजेंटर, यू आर अ गुड QA एनालिस्ट, you are a good scientist, you are a good developer, whatsoever you are good at, you are a good designer। जो भी आप चीज़ में अच्छे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मगर आप अकेले कुछ भी नहीं है, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। सो what you have to do is to collectively join hands with other experts। जो अदर एक्सपर्ट्स हैं, लाइक मैंने लास्ट सेशन अटेंड किया था, तो आई गॉट टू नो कि देयर आर पीपल जो कि AI को भी पढ़ रहे हैं और डेटा साइंस को भी पढ़ रही हैं, जो कि ब्लॉकचेन को भी पढ़ रहे हैं। तो आई वेंट थ्रू द कोर्स आउटलाइन, तो मुझे पता चला कि उस कोर्स आउटलाइन के अंदर देयर आर पीपल हु आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, who are learning cryptocurrency, who are learning different other things like front end development, cloud computing, Dockers, Kubernetes। तो मुझे पता चला कि तो बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग इस जो है ना स्कूल से निकलेंगे। जब वो निकलेंगे तो what they have to do is to build a network। अपने अपने एक्सपर्टीज को हाईलाइट करें और एक नेटवर्क क्रिएट करें। लाइक मुझे शुरू से ही जो है ना एक्सपर्टीज रही है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा शौक रहा है शुरू से ही, इवन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे। और दूसरा जो है ना थोड़ा बहुत हैकिंग साइड पे मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है, बट वो मैं कर नहीं सका। फ्रंट एंड के ऊपर मुझे अर्ली जॉब भी मिल गई थी, इवन ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी टाइम, तो मुझे उस पर अच्छी जॉब मिल गई थी, तो मैंने उस पर काम स्टार्ट किया। तो मुझे उस पर इंटरेस्ट रहा है शुरू से, मैंने उसको यूज़ किया। इसी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ उसको इंटरकनेक्ट किया। बाकी इसमें आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉन्डिंग नहीं करेंगे दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, तो यू विल नॉट क्रिएट अ ग्रेटर नेटवर्क। सो टू क्रिएट अ ग्रेटर नेटवर्क यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपके पास डिफरेंट फोरम्स हैं, वहाँ पे कनेक्ट हों। यू शुड शेयर सम आइडियाज़। जैसे मैंने यहाँ पे 2 आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए, एक तो इसमें मेंशन है और एक मैंने वर्बली आपको बताया था। तो इस आइडियाज़ के ऊपर आप फर्दर डिस्कशन करें कि हाउ आई कैन यूज़ अ ब्लॉकचेन या हाइपर लेजर to connect with the transactional data of a bank
और उस ट्रांजेक्शनल डेटा को मैं कैसे स्टोर करा सकता हूँ। कोई क्लाउड कंप्यूटिंग को सीख रहा है तो कैसे मैं उस पर स्टोर करा सकता हूँ और उसको मैं कैसे फिर वहाँ से एनालिटिक्स लेकर आ सकता हूँ। IBM हैज़ अ लॉट ऑफ बिल्ट इन टूल्स जिसको यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू यूज़ अ प्री डिफाइंड टूल्स जो कि आपको खरीदना पड़े। यू कैन डू इट लेटर, बट यू शुड एक्सप्लोर दोज टूल्स एज वेल, ताकि आपको उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स का और वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ का, वो माइक्रो सर्विसेज कैसी बनाता है IBM या और डिफरेंट गूगल या अमेजोन, तो वो किस तरह से बनाते हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। तो इट डजेंट मैटर कि आप जो है कौन सी कंपनी को यूज़ करते हैं, आप यूज़ अमेजोन सर्विसेज एज वेल इवन वर्किंग एट IBM, तो डजेंट मैटर। उसके अलावा जो है आपको नेटवर्क जब तक नहीं बनाएंगे तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड, जब आप एक पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ को फॉलो करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इनोवेशन और थिंकिंग ऑफ एन आइडिया, then learning those skills, after that learning those skills, making a network or creating a network, then what you will do, you will create opportunities. उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। आपके पास स्किल्स भी हैं कम्युनिकेट भी इंटरेक्ट करने के लिए, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भरी हुई है, लोग आपको डिफरेंट टास्क बता रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, करना है। सो यू कैन प्ले योर पार्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और आपको आराम से जॉब मिल जाएगी उसके अंदर, तो कुछ भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनोवेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि कहाँ पे लूपहोल्स हैं। पाकिस्तान को देखें, लोकल मार्केट को देखें। डेफिनेटली वी ऑल कैन नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। हम आराम से बाहर नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होता है। यू हैव टू बी वेरी स्पेशल, वेरी टैलेंटेड। अनफॉर्चुनेटली वी हर कोई इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होता। देयर आर माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, दे कैन गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स। देयर आर सम फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस एज वेल, economical restriction as well, जिसको bypass नहीं कर सकते। Even a lot of people would be working freelance for the American companies or European companies, पर वो भी नहीं बाहर जा सकते because there are financial और economical boundaries जो कि वो अवेल कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर रहे हैं because of the cheap labor Pakistan has. So what you can do, you can create opportunities within the country. आप अपनी ही इस लेबर को यूज़ करें, अपनी ही लोकल कंपनीज़ को यूज़ करें और उनको पास लेकर जाएं, प्रेजेंटेशंस बनाएं, डेक बनाएं, MVPs बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं, POCs बनाएं, then you can present to the companies and you can ask like we can do that thing. We have a group of people like 10 or 20 people. We just passed out from the university and did this course of machine learning or blockchain, and we can create this application. आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें टाइम दें, आप हमें स्पॉन्सर करें, we can develop those things. So that's how you are going to create opportunity. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आपको अडॉप्टिव बहुत होना पड़ेगा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को। कि देयर वुड बी सम बैंक्स जो कि उनकी अप्रोच अलग होगी। वो कहेंगे कि हम तो शुरू से ऑरिकल यूज़ कर रहे हैं एंड हम तो जो है इसके अलावा कोई और डेटाबेस यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन यू विल ब्रिंग के नहीं, आप एक काम करेंगे, आप डेटाबेस अपना मेजर डेटाबेस ये रखें, पर आप जो है कस्टमर इंसाइट्स के लिए क्लाउड का डेटाबेस बना लें या जो कर लें, तो दे वुड बी वेरी रिलक्टेंट टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। तो यू हैव टू बी अडॉप्टिव फॉर देम। आपको अडॉप्टिव बनना पड़ेगा, क्लाइंट को अडॉप्टिव आप नहीं बना सकते क्योंकि यू हैव टू पुट द क्लाइंट फर्स्ट। तो आप जब क्लाइंट को पहले फोकस देंगे, अहमियत देंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, देयर इम्पोर्टेंस, कि वो किस चीज़ के ऊपर माइग्रेट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वहाँ पे आप अपने स्किल्स को जो है अडॉप्ट कराएंगे, वहाँ पे आप उसको एडजस्ट कराएंगे किसी तरीके से, सो दैट आप जो है अपनी चीज़ डिलीवर कर सके, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ जॉब मिल जाए। यू कैन क्रिएट योर ओन कंपनी। आप जो है अपनी कंपनी बना सकते हैं, आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। आप कोई देयर मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं, ई-कॉमर्स होता है, आप उसके लिए कोई एक अलग सी सर्विस बना लें, जस्ट लाइक करीम और ऊबर वाज अ वेरी बिग कंपनी। ऊबर इज़ अ वेरी बिग कंपनी, तो उसकी कॉपी की करीम ने, मगर पाकिस्तान में लोकल कम्युनिटी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो बात यह है कि इसी तरीके से आप भी बहुत सारे आइडियाज़ को कॉपी कर सकते हैं जो बाहर चल रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर आप उसकी सर्विसेज क्रिएट करेंगे तो दैट वुड ऑल्सो वर्क। ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा, लोग आपको बोलेंगे कि कॉपी क्यों कर दिया। वी शुड ऑलवेज ब्रिंग सम इनोवेशन इन दैट। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के हिसाब से आपने सोचना पड़ेगा ना कि किस तरह से आपको उनके लिए काम करना है। सो यहाँ तक अब जो कि समझाने का मकसद था वो मैं इसको थोड़ा सा जो है दोबारा से रिपीट कर देता हूँ
कि AI में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ में काम हो रहा है, मीडिया इंडस्ट्री लेने, कुछ भी लेने, टीवी, बैंक्स, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर। वी हैव मैन पावर, हमारे पास लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं, हमारे पास कम्युनिटीज़ भी हैं डिफरेंट। व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू लर्न स्किल्स, और इसके बाद जो है हमें से एक पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट करें, उस नेटवर्क के साथ हम मिलके कोई प्रोडक्ट डेवलप करें, और उस प्रोडक्ट को फिर हम किसी को जो है पिच करें या हम उसके ऊपर खुद काम करें, व्हाटएवर सूट्स यू, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो मेरा बताने का जो पूरे प्रेजेंटेशन का मकसद था वो यही था कि आई वांटेड टू डेवलप, आई वांटेड टू यू नो, मेरी कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच रही है शुरू से। तो मतलब आई यूज्ड टू यू नो कैरियर। भाई आई एम हियरिंग अ वॉइसेस, कैन यू प्लीज म्यूट दैट? थैंक यू। Please turn off your mics. थैंक यू। सो कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच रही है, तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप जो अपना कैरियर पाथ चूज़ करें उसी के ऊपर जाएं, या 100% नहीं होता, बट यू कैन रीडायरेक्ट योरसेल्फ और कुछ हद तक चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ हद तक चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई अगेन एंड अगेन, never have to lose hope. Even if you are struggling, no worries. If you are jobless, no worries. If you are working on some other field rather than your desired field, no worries. Keep on doing that. अपने sideline चलाते रहें, अपने वर्क को भी करते रहें, sideline भी देखते रहें। Excuse me. तो उसके साथ आप जो है इस चीज़ को अचीव कर सकेंगे। टोटल जो है ओवरऑल मुझे यही आप चीज़ आपको कन्वे करनी थी कि यूजिंग द स्किल सेट, क्रिएटिंग अ नेटवर्क, यू कैन क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़, और इस तरीके से आप खुद एक्सेल कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क। जी आप हैंड रेस का ऑप्शन देख रहे हैं, तो प्लीज one by one. Yes sir, यार प्लीज आप बोले। Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you please speak louder? Sir, I am having a background of electronics. So actually I want to come to the AI side. So basically from there I should. Can you please write it down, ताकि फिर वो जय मरियम उसको पढ़ दें। If you can write down the question. Alright, so should I read out the questions or ठीक है, मैं चार्ट ओपन करती हूँ। फर्स्ट वन इज सर, जो मशीन फीवर चेक करने के लिए COVID-19 पेशेंट के लिए उसे AI कह सकते हैं? सॉरी, ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। उसे AI कह सकते हैं, ही इज आस्किंग दैट। अच्छा, उसे AI कह सकते हैं, ठीक है जी मिस्टर मुसम्मिल। या सर, आई गॉट द क्वेश्चन। तो जो बेसिकली मशीन हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ इंफ्रारेड रिसीवर उस पर लगा होता है, जो कि रेडिएशन पास करता है, उसको रिजल्ट, उसका आउटकम देखता है कि वो रेडिएशन कितनी इन्हेंस हो गई हैं, उसकी कितनी परसेंटेज, यानी कि उसकी उसके साथ कितनी जो है क्या कहते हैं फीवर क्या कहते हैं उसको, जो कि उसका टेम्परेचर है कितना राइज हुआ है। तो वो देयर सम स्मॉल कैलकुलेशन जो उस टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है, जस्ट लाइक वी यूज़ इन अ रिमोट कंट्रोल या और चीज़ों में यूज़ कर होता है, तो वहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। हीट सेंसर्स लगे हुए हैं उसमें बेसिकली। तो देयर इज़ यू कैन से that is not actually AI, because वो autonomously नहीं कर रही है, that is a machine, simple machine। तो उसको AI आप तब कह सकते हैं जब आपने किसी स्टोर के बाहर जो है एक कैमरा फिट कर दिया, इंफ्रारेड कैमरा या कोई भी कैमरा फिट, या हीट सेंसर जो कि कैमरास होते हैं वो फीड कर दिए हैं, और वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर रहा है, जो भी पर्सन वहाँ से चलता है वहाँ उसका टेम्परेचर रीड हो रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही कैन द मशीन कैन आइडेंटिफाई कि whether this guy has to be stopped or let enter into the store।
तो कैमरा लगा हुआ है, वो वहाँ से आइडेंटिफाई करे। अगर वो हीट सेंसर्स बताता, हीट सेंसर इज बेसिकली वुड सर्व एज अ IoT डिवाइस, तो वहाँ पे वो बताएगा सर्वर को, और वहाँ से वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, वेदर AI आइडेंटिफाई करेगा वेदर दिस person needs to be allowed to enter the store, or he has a high fever और जो भी इसको symptoms हैं। तो इस तरह से फिर आप उसको AI का नाम दे सकते हो। सिंपल, that is just an operating device, a computer, a machine. So I hope this answers the question. Okay, so next one is right now what IBM is doing through healthcare facilitate. Sorry, कुछ मुझे आपका समझ नहीं आ रहा लीजा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि how IBM is facilitating in this current situation of COVID-19 और AI versus COVID-19। ठीक है, तो मतलब ये है कि IBM कैसे सर्व कर रहा है, I guess, right? So अभी हमें रिसेंटली पता ये चला था कि when the COVID-19 started, so IBM has used their heavy servers। IBM के पास जो सर्वर कैपेबिलिटीज़ है, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है, IBM ने वो अमेरिका के साथ जो है कोलैबोरेट करके वो यूज़ कर रहे हैं उनके हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के साथ, टू आइडेंटिफाई अ मेडिसिन और एन एंटीडोट अगेंस्ट दिस वायरस। तो वो जो डिफरेंट मशीन्स हैं, जो डिफरेंट IBM के प्रोसेसर्स हैं, IBM की जो के सर्वर्स हैं, दे आर वर्किंग टू फाइंड द सोल्यूशन। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे यूज़ किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो वो पेशेंट्स के एनालिसिस भी कर रहे हैं, वहाँ पे उनके सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशंस भी हो रही हैं, कौन से पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ आया और फिर कितने टेन्योर के बाद वो जो है रिकवर हुआ, उसने कौन कौन से सिम्टम्स शो किए। तो वहाँ पे डेफिनेटली एनालिटिक्स भी वर्क कर रही है, वहाँ पे डेटा साइंस भी वर्क करी है, वहाँ पे AI भी वर्क करी है, वहाँ पे IoT भी वर्क करी है, वहाँ पे डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़ कंबाइन होकर काम कर रही हैं, जिसमें जो है IBM ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि इसका जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी जो कि वैक्सीन है वो क्या बनाई जा सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, और ये होपफुली इस पर सिर्फ IBM काम नहीं करी, इस पर डिफरेंट और कंपनीज भी काम करी। तो होपफुली इन अ फ्यू मंथ्स वी विश के इस पर कुछ जो कि एक्यूरेट वैक्सीन आ जाए। अभी भी कुछ वैक्सीन आई हैं तो वो इन्हीं बेसिस पे आती हैं, बट सम आर 30% have 30% चांसेस ऑफ रिकवरी, किसी की 50% है, किसी की 40% है। और जो वैक्सीन आ रही हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, बिकॉज उनके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट्स इतने नहीं हुए, उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है। सो एज अ टाइम गोज़ तो उस पर डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दैट्स व्हाट IBM इज़ डूइंग टू हेल्प आउट अ बिगर पेंडेमिक। अपना पार्ट IBM वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है ताकि जो है इसका कोई सोल्यूशन लेकर आ सकें। Okay, so should I read out the next question? Yeah, sure. तो है sir, which algorithms should we require or be required to learn to enter as a beginner in AI field? अच्छा, तो मतलब ये है कि what algorithms should we learn as a beginner in AI? So algorithms for data science, AI, artificial intelligence. जी हरमैन, आप अपना माइक ऑन करके जरा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें अगर। Are you got the question, Mr. Musamba? hello. Yeah, but if you can repeat, it would be good. Hello. Yes, I can hear you. Am I audible? Yes. Okay, sir. There are different algorithms in AI field, like naive Bayes, linear regression, random forest. So my question is that as a beginner, which algorithms we should learn or done some projects to start our career in AI? अच्छा, these are all the algorithms that belongs to the machine learning domain. ठीक है, AI के सबसेट है machine learning, उस पे बिलोंग करते हैं, AI से ही बिलोंग करते हैं, बट AI इज़ अ वेरी फास्ट डोमेन। एज आई टोल्ड अर्लियर, AI बहुत बड़ी फील्ड है, तो दैट्स वाज आई वाज कंफ्यूज कि AI के कौन से एल्गोरिथम्स हैं। AI तो काफ़ी बड़ी फील्ड है। तो दीज आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसमें से देखो, यू कैन यूज़ एनी एल्गोरिथम यू वांट, बट फर्स्ट यू हैव टू सी के आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, लाइक मार्केट में कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। आप अगर आपके पास प्रोजेक्ट कौन सा आया तो उसी हिसाब से सीखेंगे। लाइक द फर्स्ट
project I got even IBM में जो पहला प्रोजेक्ट आया था तो that was about the banking field जो उसका था तो उसमें जो है we worked on KNN, K-means and cluster classification algorithm, these sort of algorithms हमने काम किए थे. तो अब वो उस वक्त की नीड थी. Then we learned other algorithms as well. तो आपको ये करना चाहिए कि आपके पास पहले तो first you should have a basic knowledge, elementary knowledge of all sorts of algorithms जो major algorithms हैं 20-25 जितने भी हैं algorithms हैं आप उसकी जो है ना बेसिक नॉलेज सबकी आपके पास होनी चाहिए. टेक्निकल स्किल्स के अंदर कुछ उसमें मसला नहीं है, एल्गोरिथम लिखना कोई मसला नहीं है. वी ऑल हैव गूगल, वी ऑल हैव स्टैक ओवरफ्लो एंड अदर थिंग्स. हमने वहाँ से एल्गोरिथम्स के पूरे स्निपेट्स या इवन वी हैव अदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो कि पूरे जो है ना कोड्स वगैरह उसके परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं. बट वी हैव टू डू इज़ द अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पे यूज़ हो सकता है. अगर आप जो है एंड्रू एनजी की जो कि आप कोर्सेज वगैरह करें तो उसमें भी उसका जो फोकस है ना वो ज़्यादा इस तरफ है कि हाउ यू कैन यूज़ दोस एल्गोरिथम इन ए प्रैक्टिकल वे. कहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशंस हैं. बट उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इस एल्गोरिथम में कोडिंग कैसे हुई हुई है या मतलब इसको डेप्थ में नहीं बताया हुआ कि इस एल्गोरिथम को हमने जो है ना किस तरीके से राइट करना है या क्या करना. ही यूजली ब्रीफ अबाउट कि उसकी कहाँ पे एप्लीकेशंस हो सकती हैं. तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपने नैफ बाइसन या आपने जो KNNs या पढ़ लेना है उसके बाद आपको ज़िंदगी आसान हो जाएगी तो दैट वुड बी अ वेरी रॉन्ग एडवाइस. मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि यू शुड लर्न द मेजर एल्गोरिथम्स. आप मेजर के अंदर 20 से प्लस भी हो सकते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट यू शुड डू एटलीस्ट 20 ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि किस तरह से करना है. तो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. और जब आप करेंगे कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ उसके अंदर आपको मॉडल बनाने के लिए मुश्किल नहीं आएगी. सबसे ज़्यादा आपको जो है उसमें डिफरेंट और एस्पेक्ट्स में मुश्किल आ सकती है. डेटा क्लीनिंग में आ सकती है, डेटा प्रिपरेशन में आ सकती है. और उसके अलावा जो है आपको मॉडलिंग तो बहुत बात की कहानी होती है ना. इनिशियल स्टेजेस में आज आप जो है ना कैप्चर हो जाओगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कैटेगोरिकल वैल्यू डेटा के कैसे वेटेज निकालनी है वॉट एवर द केस इज. तो यू विल स्टक. तो आई विल रिकमेंड यू टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. स्किल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो है ना स्कोप होगा. तो यू शुड फर्स्ट गो ऑन डिफरेंट साइट्स. वहाँ से आप देखो कि कौन सी कोई प्रोडक्ट कोई ऐसी टास्क हो या कोई ऐसा यू कैन से कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम हो या कोई ऐसी जो है ना ऑनलाइन जॉब आई हुई हो जो कि आप देखें और उसके हिसाब से फिर आप एल्गोरिथम लर्न करें. और उसके बाद फिर आप उसको जॉब का वेल करके उसको जो है ना डेवलप करके दें. तो आप अगर फाइवर या देयर आर अपवर्क साइट्स हैं वहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. उसमें से आप सेलेक्ट कर लो कि जो ज़्यादा आ रहा है ना प्रोजेक्ट मीन्स कि उसकी जो है डिमांड ज़्यादा है. उसमें से आप कोई भी टेक्नोलॉजी उठाएं, उसकी टेक्निक को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे वो सीखें. देन 1 महीना 2 महीने बाद जब आप सीख लो उसको तो फिर आप उसका वेल कर लेना. तो Okay, sir. Thank you so much. Sir, may I continue? I have a question, sir. Yes, please. Actually, you were talking about if we combine both AI and blockchain, then we can. It's a kind of fraud detection type of you were talking about that kind of apps or applications. Mm-hmm. So, can you explain that a little bit? Technology point of view. मैंने ये स्लाइड जो खोली आप इसकी बात कर रहे हैं, राइट? Maybe. Actually, मैं स्लाइड नहीं करता उस वक्त, जस्ट मैं आपकी बात कर रहा था. अच्छा मैंने ठीक है मैं आपको वर्बली बता देता हूँ. तो व्हाट आई एम सेइंग इज के मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट आई वाज सेइंग के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं. So to reduce the fraudulent activities, we can use that we can put those transactional data and pass it through a blockchain or store it in a hyperledger. Hyperledger is a big ledger. उसके अंदर सब चीज़ स्टोर होती है. लेजर के अंदर क्या होता है, बैलेंसिंग इक्वेशंस होती है ना, राइट? इफ पीपल आर फेमिलियर विद अकाउंटिंग्स तो दे शुड नो के लेजर के अंदर बैलेंस होती है, वैल्यूज उसमें स्टोर्ड होती है. उसमें वी शुड नो के अकाउंटेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं उसकी. तो बेसिकली सिमिलरली यू कैन यूज द हाइपरलेजर टू स्टोर द वैल्यूज इन दैट ब्लॉकचेन. और फिर उस बैंक का ट्रांजेक्शनल डेटा जो है ना आप मेंटेन कर सकते हैं. और वो जो ब्लॉकचेन का जो डेटा होगा वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड होगा.
एनी बैंक कैन यूज़, यानी आपने जो शॉपिंग की अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो आपका मास्टर्स का क्रेडिट कार्ड था जो आपको जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने दिया है, बट यू हैव यूज्ड अगेंस्ट अ वेंडर जो HBL का वेंडर था, तो HBL will have that information. Sorry, I am interrupting you. You said that blockchain data will be centralized. Yes. Maybe if We can. Yes. तो इसका मकसद ही है ना ब्लॉकचेन का, centralized data. No, blockchain is all. No, I think it's all about decentralization. No. Yes. Sorry, decentralize करना है इसको. ब्लॉकचेन का मतलब ये centralized ना हो डेटा. Pardon. So decentralization ही करनी है because you have to combine all the banks, या banks के अलावा भी आप दे सकते हैं, maybe export industries लेने, तो आप उन सब का डेटा एक जगह पे कर रहे हो ना, so that anyone can has the idea कि वो डेटा जो है उसके क्या वैल्यूज़ हैं, उसमें जो fraudulent एक्टिविटीज़ है ना वो ना हो. सिर्फ ये एक एस्पेक्ट नहीं है fraudulent का, you should know. मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट जो होती है, तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं कि व्हाट गुड्स यू आर एक्सपोर्टिंग, तो आपके पास एक एक्सपोर्ट कोरियर होता है, आपके पास शिपमेंट्स आती हैं, यू शुड नो कि इस शिप के अंदर कितनी एक्सपोर्ट्स आई हैं, तो ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट शुड नो कि इस पोर्ट के ऊपर जो है कितनी अमाउंट की या कितने डॉलर्स की जो है इंपोर्ट हमने मंगवाई है, या इस डॉक से कितना एक्सपोर्ट होने जा रहा है. तो दे शुड आल्सो कैलकुलेट द रेवेन्यू अगेंस्ट दो सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम. तो यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है ब्लॉकचेन की, तो एक एप्लीकेशन ही नहीं है ना, इसकी हजारों एप्लीकेशन है. डिसेंट्रलाइजेशन वाकई में मैंने उसको थोड़ा सा गलत बता दिया था, बट ये है कि नहीं वो मैं आपकी बात को ना बस थोड़ा सा उसको कर रहा था. या थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, anyone? Yeah, I Anyone got it. else? थैंक यू. किसी और का क्वेश्चन है तो या मैं रीड आउट करती हूँ, I guess. So Umar Nasir is saying that, sir, what kind of IBM supercomputer Watson is and how it works? Sorry, can you repeat that? Umar Nasir का question है that, sir, what kind of IBM can I ask question? Who's speaking? Mr. Abid. Yes, please. आप continue करें फिर मैं पढ़ूँ. जी. My name is Abid Ali and I am from the finance background. My question is that I want to learn data science. So you can you recommend me what is the prerequisite for data science? So पहले मैं इनका आंसर दे दूं, then I can go for Okay. Mariam question. तो डेटा साइंस के लिए prerequisite that you should know a programming language. ठीक है, any programming language. We can start with Python और R. दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं. यू आर फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज ऑलरेडी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की है. ठीक है. सेकंड थिंग इज द स्टैटिस्टिकल नॉलेज. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आप यूज़ कर सकते हो, या कौन से जो है अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग. तो इसके लिए इनिशियली दो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो, आर हो, SQL और एनी अदर लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, और साथ साथ आपको थोड़े बहुत मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए. आई होप माई आंसर इज करेक्ट फॉर यू. आपको समझ आया? ओके, मुझे बहुत और लेने की मैंने ऑडियो से पेपर की है ना, कुछ 10-12 साल पहले. तो मैं चाह रहा था मुझे अपने आप को अपडेट करना है, जैसे कि मुझे फाइनेंस के साथ साथ अपने पर्सनल. You are not audible. There's some connection here at your end. I don't know who's speaking. Sorry. Okay, so Yes, let's idea. get back to Mariam's question. आपका क्या क्वेश्चन था? Okay, can you repeat that? जी, ये मिस्टर उमर कोई क्वेश्चन कर रहे थे, जरा मैं उनके क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल अप कर दूं. Yes, so Umar was asking that, sir, what kind of IBM supercomputer Watson is and how it works? If you are asking about के जो कि अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए कौन से सुपर कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, तो वो IBM Z हैं. आई एम नॉट श्योर द वर्जन ऑफ दोज कंप्यूटर, या मुझे डिटेल्स तो नहीं पता उनकी कि वो कौन सी डिटेल्स हैं, मतलब किस वर्जन के, उनकी कितनी
प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ वो एक्वायर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो सारी बातें जो बताई नहीं जाती हैं, जाहिर सी बातें वो छुपी हुई होती हैं, कंसील्ड होती हैं। तो IBM Z सुपर कंप्यूटर्स और भी हैं जो कि इसको कलेक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं। सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड-19, वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि जो वाटसन कंप्यूटर IBM का वो किस तरह से वर्क करता है और किस टाइप का कंप्यूटर। अच्छा, देखिए वाटसन इज़ नॉट अ कंप्यूटर, वाटसन इज़ नॉट अ कंप्यूटर। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, वाटसन is like is a programming is an AI, सही है। वाटसन एक टेक्निक है, सही है, is a group of techniques all together, ये एक कंपोनेंट है, ठीक Say है। that it's a platform for business. राइट। सो वाटसन जो है वो एक नाम दिया गया है एक ग्रुप ऑफ AI टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLU, NLP, वाटसन एनालिटिक्स, वाटसन इनसाइट्स, वाटसन डिस्कवरी, वाटसन नॉलेज स्टूडियो, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स AI की या मशीन लर्निंग की जो उसके अंदर जो है रखी गई हैं, उनकी माइक्रो सर्विसेज बना के रखी गई हैं। तो उसको वाटसन का नाम दे दिया गया है, जो कि बैक एंड के ऊपर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं। कोई एक सुपर कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। तो उसके बारे में डिटेल तो वी कैन नॉट शेयर एट द राइट नाउ एट द मोमेंट। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, आप IBM के डिफरेंट पेजेस हैं, वहाँ पे आप जाके सर्च कर लो, वहाँ पे आपको जो पॉसिबल डेटा मिलेगा। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर द अदर डेटा यू हैव टू रिक्वेस्ट IBM टू शेयर सम डॉक्यूमेंट्स विद यू। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। Okay, so Mr. Shahryar Khan is saying that I'm from electronics background and I'm doing artificial intelligence course. From where should I start and what sector should I make myself strong at? And event, strong event. I don't know, I don't know proper CSS, Java, HTML. Can you share a proper pathway to follow? ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन, 100% नहीं समझा, बट आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ही इज़ आस्किंग, आई एम डूइंग AI courses, so definitely AI के अंदर you would be familiar with Python और JavaScript, यही दो लैंग्वेजेस के ऊपर ज़्यादातर AI पे काम हो रहा है, if I'm not wrong. But he is asking कि मैं CSS, HTML और JavaScript, CSS, HTML के ऊपर मैं किस तरह से अपना स्कोप बना सकता हूँ। So CSS, HTML, JavaScript and other things, these are not related to AI. These are the front-end technologies that you can use making an AI application, ठीक है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये AI की कोई लैंग्वेज नहीं है, सही है। HTML, CSS is a front-end is a scripting language या front-end styling language, CSS वगैरह, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हो, CSS, JavaScript and HTML and some other related field languages या framework, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो। फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है जो कि बैक एंड से फ्रंट एंड को कनेक्ट करना, इंटीग्रेशन करना। सेकेंडली उसका काम होता है कि फ्रंट एंड को और इन्हेंस करना, अच्छे से बनाना। तो वेबसाइट्स के ऊपर काम कर सकते हो, यू कैन डू वर्क ऑन अदर एप्लीकेशंस लाइक जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब ऐप होती हैं, उसको बना सकते हो। और डेस्कटॉप पे तो अब शायद काम बहुत कम ही होता है, वो उसको भी कर सकते हैं। तो ये बस इस तरह से आप फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं, पर AI का इसके ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो आप चाह रहे हैं। Okay. ठीक है। So next question is Ali Akbar कह रहे हैं कि sir, what's the difference between critical thinking and brainstorming? Sorry, what's the difference between? What's the difference between critical thinking and brainstorming? देखिए इसका ज़्यादा मेजर, thinking, हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बोथ आर ऑलमोस्ट द इंटरचेंजेबल वर्ड्स कि ब्रेन स्टॉर्म करना या क्रिटिकल थिंकिंग करना इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बस थोड़ी सा डिफरेंस है। वो ये है कि when you brainstorm, तो मे बी यू हैव सम आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम
और आपको उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन को ब्रेनस्टॉर्म करके आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या सोल्यूशन निकलेगा. यू हैव द प्रॉब्लम कि हमने इसको कैसे नाउ वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड गेट द सोल्यूशन डन. बट व्हेन यू आर डूइंग द क्रिटिकल थिंकिंग, तो यू डोंट नो द प्रॉब्लम, you have to locate the problem, you have to be like, you have to think out of the box. रीजनिंग करनी होती है. थिंकिंग का यहाँ पे मतलब है रीजनिंग. यू हैव टू रीजन लाइक इफ आई विल डू दैट तो क्या होगा. सही है, अगर मैं कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन रन करता हूँ, क्लाउड के ऊपर मैं सारा डेटा डाल देता हूँ अपने बैंक का, तो क्या होगा, थेफ्ट तो नहीं हो जाएगी. तो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज आर द क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ आई कैन प्रोटेक्ट दोस डेटा. या मैं ये क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है जब आपको सोल्यूशन, आपको प्रॉब्लम ही ना पता. यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग. यू ऑलरेडी नो द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म इन दैट प्रॉब्लम, दैट्स ब्रेनस्टॉर्म. Okay, thank you, Mr. Musammal. So, anyone else? अगर किसी की question है, because मेरी मीटिंग जो है मैंने लीव कर दी थी, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है कनेक्शन, तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे जो पीछे थे. तो प्लीज़ आप प्रीवियस क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो प्लीज़ ओपन योर माइक और राइट इट डाउन इन द चैट. ओके, तो जवाद मलिक कह रहे हैं व्हाट लैंग्वेजेस एंड मॉड्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए फ्रॉड डिटेक्शन ऐप एंड वेबसाइट्स. तो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए प्लीज़ बता दें मिस्टर मुसम्मल. फ्रॉड डिटेक्शन के लिए मैं इसको खुद भी रीड कर लेता हूँ. बेसिकली फ्रॉड डिटेक्शन के लिए जो है ना, आपको डेटा के ऊपर सब डिपेंड करना पड़ता है. डेटा से ही आप इंसाइट्स निकालते हैं. लाइक मैं इसके लिए आपको जो है ना, लैंग्वेज ज़्यादातर पाइथन यूज़ होती है क्योंकि पाइथन ही ज़्यादा अवेलेबल है और आप इसकी एप्लीकेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं. वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली. तो आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न यूज़ पाइथन. एंड मॉड्यूल्स इसके 3-4 होंगे. एक तो इसका डेटाबेस होगा बेसिकली जहाँ पे आप स्टोर करें वो डेटा. दूसरा इसका जो कि एनालिटिकल इंजन, या आप उसको कहें, जहाँ पे इसके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के रन कर रहे होंगे, जहाँ पे आप एनॉमली डिटेक्शन कर रहे होंगे या फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे होंगे कि कौन सा एकदम से डेटा आया है. लेट सपोज, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक क्लाइंट है जो कि हर महीने शॉपिंग करने आता है इम्तियाज़ पे, वहाँ से 20,000 रुपये की शॉपिंग करता है, घर आ जाता है. अब महीने के वो स्टार्ट में करता है या मिड में करता है, डिपेंड करता है. अब लेट सपोज वो स्टार्ट में करता है, बट व्हाट हैपन्स कि उसने महीने के स्टार्ट में 20,000 की शॉपिंग की, ठीक है. उसके बाद उसने जाके महीने के मिड में भी जो है ना 25-30 हज़ार रुपये की या 50,000 की शॉपिंग दोबारा से कर ली. सो व्हाट दिस एनॉमली डिटेक्शन या इस फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर क्या होगा कि वो फ़ौरन से जो है ना एक जनरेट करेगा, क्या कहते हैं, अलर्ट जनरेट करेगा कि दिस हैज़ बीन चार्ज ऑन दिस गाय, और वो वेंडर को वहाँ पे पॉज कर देगा थोड़ी देर के लिए. जो ट्रांजैक्शन होगी वो वहाँ पे ब्लॉकचेन में स्टोर्ड हो गई है, मगर वेंडर को उसके वैल्यू नहीं मिलेगी, वो वहाँ पे पॉज हो जाएगी. एनॉमली ने उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया फॉर द मोमेंट अनटिल अनलेस द कस्टमर कंफर्म्स द ट्रांजैक्शन इज राइट और रॉन्ग, आइदर ऑन अ फोन कॉल और एनी अदर सोर्स. तो इस तरह से जो है फ्रॉड डिटेक्शन काम कर सकते हैं. तो इसमें मेन जो है ना लैंग्वेज पाइथन हो गया, मॉडलिंग, आप डेटा साइंस के कोई भी मॉडल जो है आप जो आपको एनॉमली डिटेक्शन के लिए बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो बाकी ब्लॉकचेन तो यूज़ करें. Okay, so questions answer होंगे. Yeah. Yes, please continue. I'm so sorry. I thought आपने complete कर दिया. Yeah, sure, complete हो गया. ओके, सो आई थिंक हमें अब वाइंड अप करनी चाहिए बिकॉज 20 मिनट्स जो है हमारे एक्सटेंड हो गए. थैंक यू सो मच मिस्टर मुसम्मल, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. और हमारा जो है सेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. और हमारी ऑडियंस भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लीव करी. तो आई थिंक आपका वैल्यूएबल टाइम और आपका आने का, हमारे लिए ज्वाइन करने का, हमें बहुत सारी गाइडेंस देने का बहुत बहुत शुक्रिया. वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया. एंड अभी हम जो है इसको वाइंड अप करते हैं. सो हम सब मिस्टर मुसम्मल को जो है एक थैंक यू नोट लिखते हैं एंड देन वी आर गोना एंड इट अप. ओके, थैंक यू मिस्टर मुसम्मल फॉर जॉइनिंग अस ऑल. Thank you so much. Okay guys, take care. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.